بسم الله الرحمن الرحيم الف لام کسی تاخیر و تمہید کے میں حضرت مولانا محمد مشرف صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے گزارش گزار ہو کہ مسند خطابت پر تشریف لائے اور ہم سب کو اپنے دین کے خطاب سے نوازیں۔ حضرت مولانا تشریف لے آئے ہیں، انشاءاللہ وہ خطاب فرمائیں گے، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله العظيم۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام، سامعین اعزاء، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو دینی مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم، میں ہم سب حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ آپ حضرات نے اپنے آرام کو قربان کیا، اپنی نیند کو قربان کیا، اپنے بسترے کو چھوڑا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے یہاں تشریف لائے۔ آپ کا یہاں تشریف لانا یہ در حقیقت علماء کرام کی محبت، مدرسے کی محبت، اللہ کے قرآن کی محبت ہے، اس لیے آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں۔ آپ حضرات کے پیروں میں جو محبت کی زنجیر پڑ گئی ہے، یہ کس کی محبت ہے؟ یہ علماء کرام کی محبت ہے۔ میرے محترم، آپ اس محبت کو معمولی نہ سمجھیں، ہو سکتا ہے قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ایک صحابی میرے نبی حضرت علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے اور فرمایا متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیں قیامت کب آئے گی؟ سوال بڑا عجیب و غریب ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا علم کسی نبی کو نہیں دیا، کسی پیر فقیر کو نہیں دیا، کسی فرشتے کو نہیں دیا، کسی ولی کو نہیں دیا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اتنے بجے قیامت آئے گی، زمین اور آسمان کا سسٹم تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ سوال بڑا عجیب و غریب ہے، اس لیے میرے نبی حضرت علیہ السلام نے اس سوال کا جواب دینے کے بجائے سوال کا رخ موڑ دیا اور فرمایا آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ میرے محترموں کا دیہات کے رہنے والے تھے بڑے سمجھدار، فرمایا یا رسول اللہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے میرے پاس اعمال صالحہ کا ذخیرہ نہیں ہے، بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں، بہت زیادہ روزے نہیں ہیں، بہت زیادہ زکوٰۃ نہیں ہے، صدقہ خیرات تلاوت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ البتہ ایک چیز ہے اور اس سے مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سہارے میری نیا پار لگا دیں گے۔ انی احبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت میرے سینے کے اندر ہے، آپ کی عظمت ہے، آپ سے لگاؤ ہے، آپ سے تعلق ہے۔ اس کے علاوہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرا ہاتھ خالی ہے، میرا دامن خالی ہے۔ میرے نبی حضرت علیہ السلام نے اس جواب کو پسند فرمایا اور فرمایا گھبراؤ نہیں، اس لیے کہ المرء مع من احب، انسان مرنے کے بعد اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کیا کرتا تھا۔ اگرچہ تمہارے پاس اعمال صالحہ کا ذخیرہ نہیں ہے، اگرچہ تمہارے پاس بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں، بہت زیادہ روزے نہیں ہیں، مجھ سے محبت تو ہے، مجھ سے تعلق تو ہے، ہو سکتا ہے یہ محبت قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے نجات کا، مغفرت کا، رحمت کا، جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے کہ المرء مع من احب، انسان مرنے کے بعد اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کیا کرتا تھا۔ میرے محترم، یہ جملہ ہم سب کے لیے امید کی ایک کرن ہے، ہم سب کے لیے بہت بڑا سہارا ہے۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے، ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے علماء کے لیے، مفتیان اکرام کے لیے، قراء کے لیے، حفاظ کے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ کرے گا تو ہمارے علماء اکرام کے قدم ہو سکتا ہے کہ
وہیں پر رک جائیں اور اللہ سے گزارش کریں، خدایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ہم سے محبت کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر ہماری آواز پر جلسے میں آ جایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو مدرسے کا تعاون کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو مدرسے کے طلبہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ مسلمانوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علماء کرام کے صدقہ طفیل، حفاظ اور قراء کے صدقہ طفیل میرے لیے اور تمہارے لیے بھی جنت میں جانے کا فیصلہ کر دے، اس لیے کہ المرء مع من احب، انسان مرنے کے بعد اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کیا کرتا تھا۔ مسلمانوں، آپ حضرات کا یہ تعلق علماء کے ساتھ ہے، مدرسے کے ساتھ ہے، مدرسے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ جو ہے اسے معمولی نہ سمجھیں، یہ رشتہ بہت زیادہ کارآمد ہے، یہ محبت بہت زیادہ نافذ ثابت ہوگی، تو اس لیے آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں۔ میں آپ حضرات کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ حضرات نے اپنے آرام کو قربان کیا ہے، تو ان علماء کرام کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جہاں آپ حضرات نے اتنی بڑی قربانی کی ہے، تو تھوڑی سی قربانی اور دیں۔ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں کون کون تیار ہے، تو تھوڑا حرکت کریں، تھوڑا آگے آگے کو آ جائیں تاکہ ہمارے بہت سارے بھائی کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی تھوڑا یہاں آ جائیں، سب حضرات کھڑے ہو جائیں، تھوڑا آ جائیں، یہ جو جگہ خالی پڑی ہوئی ہے اور جو باہر ادھر مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تھوڑا وہاں سے آنے کی کوشش کریں، آ جائیں میرے محترم۔ یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے، دو چار ادھر کھڑے ہوئے ہیں اور دو چار ادھر کھڑے ہوئے ہیں، آ جائیں سب حضرات آ جائیں، جو مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے تھوڑا کھڑے ہو جائیں۔ مسجد میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تمہیں جزا خیر عطا فرمائے، اللہ تمہیں دونوں جہاں کی بھلائی نصیب فرمائے، اللہ تمہیں بیماری سے بچا دے، پریشانی سے بچا دے۔ میں سب حضرات آ جائیں، یہ جگہ چھوڑ دیں، یہ تو دین کے خلیے تو مجلس کے ادب کے خلاف ہے، آ جائیں ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ جو بھی حضرات ادھر کھڑے ہوئے ہیں سب حضرات آ جائیں، یہاں میرے محترم علماء کرام تشریف فرما ہیں، بڑے بڑے علماء کرام، اصل جن کی تقریر ہوگی ہمارے بڑے ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد اسرائیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا محمد اکرام صاحب۔ میرے محترم، یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے کہ میں اپنے علماء کرام کی موجودگی میں ناگوشائی کروں، مگر حکم کی تعمیل الامر فوق الادب کے تحت حاضر ہوا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم، آج کے بعد معاشرے نے ہمیں جن لعنتوں میں جگڑ رکھا ہے ان میں سے ایک لعنت جہیز کی رسم ہے۔ مسلمانوں، جب کوئی شخص کسی سفر پر روانہ ہوتا ہے وہ اپنے لیے کوئی سامان پیدا کرتا ہے، بالکل اسی طرح جب کوئی گھرانہ اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے وہ اسے کچھ نہ کچھ ضرور دیتا ہے، مگر بدقسمتی سے یہ ضرورت اب ایک رسم بن گئی ہے اور یہ رسم دوہرا خنجر ہے۔ لڑکے والے لڑکی والوں کا گھر لوٹ لینا چاہتے ہیں اور لڑکی والے بھی اپنے جھوٹے وقار کی خاطر زیادہ سے زیادہ چیزیں جہیز میں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی باپ کے گھر سے سسرال والوں کے یہاں جاتی ہے تو باپ کا گھر گزر چکا ہوتا ہے۔ اکثر حالتوں میں باپ ایک بھاری قرض کے بوجھ کے نیچے دب چکا ہوتا ہے۔ میرے محترم، نکاح کی بات طے ہوتے ہی لڑکی والے فکر میں ڈوب جاتے ہیں اور ان کی جو ہے بھوک بھاگ جاتی ہے، ان کی نیند اڑ جاتی ہے، ان کا چین، ان کا سکون ختم ہو جاتا ہے کہ جہیز کا انتظام کیسے کیا جائے گا، لڑکے اور لڑکے کے گھر والوں کے مطالبات کیسے پورے کیا جائیں گے۔ میرے محترم، گویا لڑکی کا نکاح نہیں بلکہ لڑکے کو خریدا جاتا ہے، اس کی ممانعت قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ آج نکاحوں کے اندر برکتیں نہیں، آج جو ہے طلاق کے واقعات اتنے زیادہ پیش آتے ہیں کیونکہ ہم نے شادی کو مہنگا کر دیا ہے۔ میرے محترم، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو مشقت کے اعتبار سے اور خرچ کے اعتبار سے سب سے کم ہو، سب سے آسان ہو۔ مسلمانوں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، میرے نبی حضرت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر قسم کا خرچ مرد کے ذمے ہے، ہر قسم کا خرچ مرد کے ذمے ہے۔ میرے محترم، یہاں اس کا الٹا ہے، یہ بیڈ کس کا ہے؟ بیوی کا ہے۔ یہ بستر کس کا ہے؟ بیوی کا ہے۔ یہ جوتا کس کا ہے؟ بیوی کا ہے۔ شوہر نہانے کے لیے جا رہا ہے، اس خانے میں جا رہا ہے، اس کرنے کے لیے جا رہا ہے، یہ صابن کس کا ہے؟ یہ بیوی کا ہے۔ اور تولیہ بدن کو صاف کر رہا، یہ تولیہ کس کا ہے؟ یہ بیوی کا ہے۔ سر میں تیل لگا رہا ہے، یہ کس کا ہے؟ یہ بیوی کا ہے۔ آنکھوں میں کاجل لگا رہا ہے، یہ کاجل کس کا ہے؟ یہ
बीवी का है, चाय बन रही है, ये बर्तन किसका है, ये बीवी का है, ये प्याली किसकी है, ये बीवी की है, ये दस्तरखान किसका है, ये बीवी क्या है, ये प्लेट किसकी है, ये बीवी की है, ये गाड़ी किसकी है, ये बीवी की है, ये मोटरसाइकिल किसकी है, ये बीवी की है, ये फोर व्हीलर किसके है, ये बीवी का है। मुसलमानों ये शौहर किसका है, ये बीवी का है, ये बात किसकी मानेगा, अरे बीवी की मानेगा। माँ बाप सर पकड़ कर क्यों रोते हैं, अरे जब माँ बाप ने अपने बेटे की मुँह कीमत ली है तो आज माँ बाप सर पकड़ कर क्यों रोते हैं। मुसलमानों रोना पड़ेगा जब मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम के हुक्म के खिलाफ अरे कदम उठाया जाएगा तो माँ बाप को रोना पड़ेगा। अल्लाह का कुरान कह रहा है कि हर किस्म का खर्च मर्द के जिम्मे है, महर इसे अदा करना है। जब महर की बारी आती है तो माँ बाप की सुई लटक जाती है। मेरे मोहतरम और शादी के ऊपर अरे कितना खर्च किया जाता है, कोई 5 लाख रुपया खर्च करता है, कोई 10 लाख रुपया खर्च करता है, कोई 20 लाख रुपया खर्च करता है और जो है महर देते हुए जोर पड़ता है। 2 जगह मुसलमानों की सुई लटक जाती है। एक तो निकाह के मौके पर जब कहा जाए कि थोड़ा सा बढ़ा कर दे दिया जाए, वहाँ माँ बाप की सुई लटक जाती है। महर देते हुए बड़ा जोर पड़ता है। अरे शादी कार्ड बनवाया जाता है, शादी कार्ड के ऊपर लिखा जाता है और निकाह बिन सुन्नती। क्या मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह किया है, क्या आपने कार्ड बनवाया है? मेरे मोहतरम क्या हमारे उलमाए किराम की ज़बानी आप हज़रात ने सुना है, अरे तारीख के जरिए सुना है, किताबों के जरिए सुना है, जमात वालों के जरिए सुना है? मेरे मोहतरम नहीं सुना है। अरे कार्ड के ऊपर कोई 20,000 रुपया खर्च करता है, कोई 40,000 रुपया खर्च करता है। आज गोले पटकाए जाते हैं। आज मैं मुसलमानों आज हमारा हर काम शरीयत के खिलाफ हो रहा है। आज यही वजह है कि जहाँ देखो अरे मुसलमान को कत्ल कर दिया जाता है, मुसलमानों का कत्ल आम हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ साजिशें बनाई जा रही है, स्कीमें बनाई जा रही है। सवाल ये होता है ऐसा क्यों हो रहा है? मुसलमानों हुकूमत को दोष देने के बजाय, किसी पीआई को दोष देने के बजाय अरे हम मुसलमान हैं, अल्लाह के कुरान में हमें इसका जवाब तलाश करना चाहिए। अल्लाह का कुरान कह रहा है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयअफू अन कसीर। लोगों तुम्हारे ऊपर जितने हालात आ रहे हैं और जितनी परेशानियां आ रही हैं, तुम्हारे ऊपर जितनी मुसीबतें आ रही हैं, ये सब तुम्हारे अपने करतूतों के नताइज हैं, ये तुम्हारे अपने बुरे अमाल के नताइज हैं। अरे तुमने अल्लाह को नाराज कर रखा है। जमीन और आसमान के तेवर बतला रहे हैं कि तुम्हारा खुदा तुमसे रूठ चुका है तुम्हारी बदअमलियों की वजह से। और मुसलमानों जब हम गौर करते हैं तो महसूस होता है तो कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो आज हमारे समाज में और हमारे माशरे में न पाया जाता हो। अरे झूठ हम बोलते हैं, ग़ीबत हम करते हैं, चुगली हम खाते हैं। अगर किसी से कर्ज़लिया ना देने का जज्बा हमारा है और पड़ोसी को हम सताते हैं, कमजोरों के ऊपर जुल्म हम करते हैं, जुआ सट्टेबाजी और नशे की लत हमारे नौजवानों के अंदर पाई जाती है, तो फिर मुसलमानों तुम बतलाओ इन गुनाहों के साथ साथ क्या हमारे घरों के अंदर अरे बरकतें आएंगी, मोहब्बत आएगी, अरे चैन आएगा, अरे सुकून आएगा? नहीं आएगा। वो घर तो तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। जहाँ मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम के लावे को ठुकराया जाता है। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब। मेरे मोहतरम अल्लाह का कुरान कह रहा है कि हालात का शिकंजा तुम्हारे खिलाफ कस दिया गया है। तुम्हारी बदअमलियों की वजह से हम अपनी जिंदगी का जायजा लें, इनफरादी जिंदगी का जायजा लें, इज्तिमाई जिंदगी का जायजा लें। शादी ब्याह के सिलसिले में हम अपनी जहालत की वजह से न जाने कैसी कैसी हरकतें कर बैठते हैं। मुसलमानों आज हमें 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल हो गए नमाज पढ़ते पढ़ते। आज भी हम नमाज के मसाइल के मोहताज हैं। हम जो है गालिब साहब से राब्ता करते हैं, किसी जो है मुफ्तियार इकराम से राब्ता करते हैं कि सदा सौ वाजिब हुआ कि नहीं हुआ है। अभी रमजान का महीना आ रहा है, इंजेक्शन की जरूरत है। हम जो है राब्ता करते हैं कि इंजेक्शन से रोजा टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो क्या बात है, हमारे यहाँ 1 मरतबा नहीं, अरे 2 मरतबा नहीं, कई मरतबा शादी हो चुकी है। आज तक हमने किसी आलिम साहब से राब्ता किया है, अरे मुफ्तियार इकराम से राब्ता किया है कि शादी ब्याह के सिलसिले में इस्लामी उसूल क्या है, इस्लामी हिदायत क्या है, कैसी लड़की का इंतखाब होना चाहिए, बारात के सिलसिले में इस्लामी हिदायत क्या है। अरे हमने नहीं पूछा। अरे क्यों नहीं पूछा? इसलिए नहीं पूछा कि हम सिर्फ नमाज और रोजे को नमाज जो है दीन का अहकाम समझते हैं और इसी के मुताबिक मसाइल समझते हैं।
मुसलमानों शादी ब्याह ये तो हमारा समाजी मामला है, जिस तरह हमारे यहाँ परंपरा चली आ रही है हम उसी के मुताबिक शादी करेंगे। अरे जो बिरादरी की रीत है उसी के मुताबिक हम शादी करेंगे। ये कितनी खुली बात है। मुसलमानों याद रखो, अरे जिस तरह नमाज रोजा एक इबादत है, इसी तरह ये शादी ब्याह एक इबादत है। अरे जिस तरह नमाज रोजा इस्लाम का एक हुक्म है, शादी ब्याह इस्लाम का एक हुक्म है। और मुसलमानों याद रखो, अरे जिस दिन निकाह होता है अरे उस रोज जो है नई जिंदगी की शुरुआत होती है। अगर उस दिन भी हम अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी को मोड़ ले लेते हैं और शरीयत के खिलाफ वर्जी करते हैं तो फिर मुसलमानों हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि इस सिलसिले में हमारे घरों के अंदर अरे मोहब्बत आएगी, अरे चैन आएगा, अरे सुकून आएगा, नहीं आएगा। और मुसलमानों याद रखो, अरे शादी का असर आने वाले बच्चों पर पड़ता है। ये औलाद अल्लाह की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नियामत है, बहुत बड़ा इनाम है। और बच्चों की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी ये माँ बाप के फराइज में से है। अगर हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं माँ बाप की बेतवज्जोही की वजह से, तो मुसलमानों याद रखो क़यामत के दिन ये अपने वालिदैन का गिरबान पकड़ेंगे। माँ बाप को शिकायत रहती है हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता, हमारा बेटा हमारा हक अदा नहीं करता। अरे माँ बाप भी तो सोचें हमने अपने बेटे का हक अदा किया है या नहीं किया है, क्या हक है। अरे शादी के बाद नहीं, पैदा होने के बाद नहीं, बल्कि शादी से पहले, अरे पैदा होने से पहले आने वाले बच्चे का हक है। अरे क्या हक है, जब उसने अभी शादी भी नहीं की है लेकिन उसका शादी करने का इरादा है तो आने वाले बच्चे का हक का ख्याल रखते हुए ऐसी लड़की का इंतखाब करे अरे जिसके अंदर नमाज हो, रोजा हो, तकवा हो, तहारत हो, अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह का डर हो, जिसके अंदर हया हो, शर्म हो, जिसके अंदर जो अपने बड़ों की तालीम करने का जज्बा हो। ऐसा ना हो कि उसकी जबान कैंची की तरह चलती हो और उसका कैरेक्टर खराब हो। ये नौजवान आजाद नहीं है कि जिसकी शक्ल सूरत अच्छी लग गई और उसने जाके शादी कर ले, नहीं, आने वाले बच्चे का हक है कि ऐसी लड़की का इंतखाब करे जिसके अंदर सालिहियत हो, अरे जिसके अंदर दीनदारी हो। अरे क्योंकि इसलिए कि इसकी गोद से जो बच्चा जन्म लेगा और उसकी गोद में जो बच्चा पलेगा वो सालिह बनेगा, वो अच्छा होगा, वो अब्दुल कादिर जिलानी बनेगा, वो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बनेगा, वो साबिर कलीली बनेगा, वो गंगोई बनेगा, वो नानवी बनेगा, वो शेखुल हिंद बनेगा, वो मोहसिन अहमद मदनी बनेगा। और अगर इस नौजवान ने ऐसी लड़की का इंतखाब किया जिसके अंदर नमाज ना हो, रोजा ना हो, तकवा ना हो, तहारत ना हो, अल्लाह का खौफ ना हो, अल्लाह का डर ना हो, जिसके अंदर जिसकी जबान कैंची की तरह चलती हो और इसका कैरेक्टर खराब हो, अगर इसी लड़की का इंतखाब किया इसकी गोद से जो बच्चा जन्म लेगा और इसकी गोद में जो बच्चा जो है पलेगा, इसकी जो है वो शैतान बनेगा, वो सलमान खान बनेगा, वो शाहरुख खान बनेगा, वो माँ बाप को धक्के देने वाला बनेगा, वो माँ बाप को सताने वाला बनेगा। इसलिए सबसे पहले मरहले पर इस नौजवान की जिम्मेदारी है आने वाले बच्चे का हक का ख्याल करते हुए ऐसी लड़की का इंतखाब करे और जिसके अंदर दीन तारीफ तकवा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए किरात, नाराए किरात, हज़रत मौलाना मोहम्मद मुशर्रफ साहब, बस जिंदाबाद बोला जिंदाबाद। मेरे मोहतरम इस पहलू को हम नजरअंदाज कर देते हैं। खैर मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह का कुरान कह रहा है कि हर किस्म का खर्च मर्द के जिम्मे है, महर इसे अदा करना है और जो है महर की जो बारी आती है मेरे मोहतरम आज माँ बाप की सुई रख जाती है, शादी के ऊपर खर्च किया जाता है। अगर निकाह के मौके पर कहा जाए कि इमाम साहब को अरे 1000 नहीं, 2000 नहीं, अरे 3000 नहीं, 5000 रुपया दे दिया जाए या 10,000 रुपया दे दिया जाए तो हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। क्या शादी लिखी जो है बारात लिखी है, क्या जो है 50 गाड़ियां, अरे 250 आदमी जो बारात में जाते हैं क्या लिखा हुआ है? अरे मेरे मोहतरम क्या कार लिखा हुआ है? अरे गोले पटकाए जाते हैं, 1 लाख रुपए के गोले पटकाए जाते हैं, अरे शराबें पिलाई जाती है। मुसलमानों क्या अच्छा होता अरे गोले पटकाने के बजाय अरे तुम्हारे पड़ोस में कोई यतीम बच्ची रहती है, अरे तुम्हारी बेटी का निकाह हो रहा है और उस यतीम बच्ची का भी निकाह और तुम्हारी बेटी की बराबर में बिठा करके अगर उसका निकाह कर दिया जाता तो मेरे मोहतरम वो अल्लाह के सामने दामन फैला करके तेरे लिए दुआ करती, अरे वाली तेरी नस्लों के लिए दुआ करती, अल्लाह तुझे बीमारी से
तशरीफ फरमाते। मेरे मोहतरम आज एक एक लाख के गोले पटकाए जाते हैं। अरे मेरे मोहतरम नाजायज है, हराम है। और हमारे बड़े हमारे बुजुर्ग यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मेरे मोहतरम आप मालूम कर सकते हैं कि गुंजाइश नहीं है, लेकिन आप कहेंगे चौधराहट की वजह से, दादागिरी की वजह से कि हमारा पैसा है हम तो आग लगाएंगे, हमारा पैसा है हम तो तबाह करेंगे, हमारा पैसा है हम तो बर्बाद करेंगे। चलो मैं भी कहता हूँ तुम्हारा पैसा है, अरे आग लगाओ, तबाह करो, बर्बाद करो, लेकिन मुसलमानों एक बात याद रखो, अरे जब तू गोला फटकाता है वहाँ कोई बीमार होता है, उसके दिल को जाकर के छूता है। अरे वहाँ कोई या कमजोर दिल वाला रहता है, जब तू गोला फटकाता है उसके दिल को जाकर के छूता है। वहाँ कोई सोया हुआ है, उसकी नींद के अंदर खल डालता है। और मुसलमानों याद रखो, मेरे नबी हज़रत इस्लाम ने फरमाया कि जो शख्स किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाता है इतना बड़ा गुनाह है जैसा कि बैतुल्लाह शरीफ को मुनहदिम कर दिया। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब मौलाना, जिंदाबाद। मेरे मुहतरम आज जो है गोले पटकाए जाते हैं एक एक लाख रुपए के। अभी मैं एक रोज एक जगह से आना हुआ, एक मदरसे में जाना हुआ, मदरसे वालों ने बताया कि यहाँ इस गाँव के अंदर एक बारात आई, 1 लाख के गोले पटकाई गई, 50,000 रुपए की शराब पिलाई गई। मालूम किया मदरसे में क्या दिया है, 500 रुपये मदरसे के अंदर दिया है। मेरे मोहतरम आप बताइए ये जो है कैसे हम पहुँच सकते हैं, कैसे हम तरक्की कर सकते हैं जब हमारा ये हाल है। मुसलमानों अरे अपने पैसे को बात क्या चाह रहा है। आज जो है अगर कहा जाता है कि इमाम साहब को 5,000 रुपया दे दिया जाए, बड़ा शोर पड़ता है, कहा जाता है कि कहीं लिखा हुआ है। मेरे मोहतरम नहीं लिखा है। अरे अगर ये नहीं लिखा है तो वो भी नहीं लिखा है। मुसलमानों यहाँ इमाम साहब को अरे कपड़ा लाकर आएगा, कपड़ा आएगा, टोपी आएगी, रुमाल आएगा, वो टोपी और करके अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहा होगा, वो अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहा होगा, वो नमाज पढ़ रहा होगा, वो अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहा होगा, वो अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहा होगा। अरे सवाब तुम्हें भी मिल रहा होगा। वहाँ का सवाब है। अरे वहाँ तो धुएं के बाद गाड़ियों के जरिए से तुम्हारा पैसा बर्बाद हो रहा है, वहाँ कार के जरिए से अरे अल्लाह का कुरान कह रहा है इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, फजूल खर्च करने वाला शैतान का भाई है। मेरे मोहतरम वहाँ तुम्हें क्या सवाब मिल रहा है। अरे महर का देना जरूरी है, महर का देना लाजिम है, वाजिब है। अगर नहीं दोगे तो गुनहगार रहोगे। क़यामत के रोज इसके बारे में बात पूछ की जाएगी। आज तो नौजवान बीवी के सामने ऐसा बहाना तलाश करता है ताकि मेरी बीवी मुझे माफ कर दे। अरे वहां 10 लाख रुपया खर्च किया, अरे गोला पटकाने में अरे 1 लाख रुपया खर्च किया गया है, वहां तुझे शर्म नहीं आई। यहाँ बीवी को 1,000, 5,000 या 10,000 देते हुए शर्म आती है। मेरे मोहतरम यहाँ बहाना तलाश करता है ताकि बीवी माफ कर दे। मुसलमानों अल्लाह का कुरान कह रहा है कि हर किस्म का खर्च मर्द के जिम्मे है, महर इसे अदा करना है, वलीमा इसे देना है, बीवी का नफका इसे अदा करना है, बीवी के रहने सहने का इंतजाम अरे इसे करना है, बच्चे पैदा होंगे उनका खर्च इसके जिम्मे है। अगर ये सारा खर्च उठाने की हिम्मत है, अरे ताकत है तो शादी करे वरना ना करे। बहुत खूब माशाअल्लाह। तो शादी करे वरना ना करे। अल्लाह का कुरान कह रहा है मर्द को औरत पर अफगान और निगरान की हैसियत इसलिए भी हासिल है जो अपना माल बीवी के ऊपर खर्च करता है, वह बिमा अनफक़ू मिन अमवालिहिम, और जो मर्द इसका उल्टा करे वो अपने आप को औरत का कलवाम और निगरान समझना छोड़ दे, वो औरत की मातहती कबूल कर ले, वो औरत की गुलामी कबूल कर ले। अरे उसे अल्लाह के आसमान के नीचे अरे जमीन के ऊपर सर उठाकर चलने का कोई हक नहीं है। अरे सीना तान करके चलने का अरे उसे कोई हक नहीं है। जो बीवी के माल पर ऐश करता है और जो बीवी के माल पर जीता है वो अपने आप को मत ना कहे, उसे मत कहने का कोई हक नहीं है। मेरे मोहतरम आज गरीबों के लिए बहुत बड़ा मसाला बन गया है। अगर वो ना भी चाहे मजबूरन भारी जहेज का इंतजाम करना पड़ता है। मेरे मोहतरम भारी जहेज का इंतजाम करना पड़ता है। मकान बेच करके करें, अरे सूदी कर्ज लेकर के करें, अरे जो है जमीन जायदाद बेच करके करें। एक वाक़या मौलाना साहब बतला रहे थे अपने बयान के अंदर, एक नौजवान आया, कहा हज़रत दुआ कर दीजिए, मैं अपना मकान बेचने के लिए चाह रहा हूँ। मौलाना ने कहा आप अपना मकान क्यों बेचते हैं, अभी करीब में तुम्हारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ है और तुम्हारे पास एक छोटी सी दुकान मोबाइलों की है और उससे इतनी आमदनी
हो जाता है, आप अपना मकान क्यों बेचते हैं? मौलाना ने बताया कि वो नौजवान रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू निकले। कहा मौलाना मेरे 2 बहनें जवान हो चुकी है और जब तक मैं अपने बहनों का फोर व्हीलर का इंतजाम ना करूंगा, मकान बेच करके अरे गाड़ी का इंतजाम ना करूंगा, सोने चांदी का इंतजाम ना करूंगा, जायदाद का इंतजाम ना करूंगा और अच्छे अच्छे कपड़ों का इंतजाम ना करूंगा, मेरी बहनों को लेने के लिए कोई तैयार ना होगा। मौलाना आज मैं अपना मकान बेच करके अपनी बहनों को उनके घर का कर दूंगा, अपनी जिंदगी किराए से गुजार लूंगा। अल्लाह ने चाहा तो मैं अपना मकान बना लूंगा, अल्लाह ने चाहा तो मैं अपना जिंदगी किराए पर गुजार करके दुनिया से चला जाऊंगा। इसका जिम्मेदार कौन है? और इसका जिम्मेदार ये तबका बैठा, ये मजमा बैठा हुआ है, इसका जिम्मेदार ये नौजवान है, इसके जिम्मेदार ये चौधरी साहब हैं, ये पैसे वाले लोग हैं, ये दौलतमंद लोग हैं, इसके जिम्मेदार ये पूरा मजमे का है। मुसलमानों क़यामत के दिन जो है आँख खुली की खुली रह जाएंगी जब तुमसे सवाल किया जाएगा कि माल कहाँ से कमाल कहाँ खर्च किया। बेशक बेशक बहुत मेरे मोहतरम, गरीबों के लिए बहुत बड़ा मसाला बन गया है। अगर वो ना भी चाहे मजबूरन हर जहद का इंतजाम करना पड़ता है, चाहे वो मकान बेच करके करे, अरे सूदी ले करके करे। बहुत सारी लड़कियां अरे माँ बाप की गुर्बत की वजह से कुंवारी रह जाती हैं और कुछ लड़कियां खुदकुशी कर लेती हैं। अरे अगर किसी लड़के का निकाह हो जाता है, आज उन दुल्हनों को तंग किया जाता है, उन्हें मारो पीटा जाता है। तेरी माँ ने क्या दिया है, अरे तेरे बाप ने क्या दिया है मेरे मोहतरम। और यहाँ से घर का सुकून खत्म होना शुरू हो जाता है। अरे जब कहा जाता है तेरी माँ ने क्या दिया है, तेरे बाप ने क्या दिया है। नौजवानों अगर तुमसे कहा जाए तेरी माँ कैसी है, तेरा बाप कैसा है, तो तेरी पेशानी में बल आ जाते हैं और तेरी आंखों के अंदर लाली आ जाती है। अरे वो भी किसी की बेटी है, उसके भी कोई माँ है। जब उससे कहा जाता है तेरी माँ कैसी है, तेरा बाप कैसा है, तेरी माँ ने क्या दिया है, तेरे बाप ने क्या दिया है, मुसलमानों यहाँ से मोहब्बत खत्म होनी शुरू हो जाती है और यहाँ से घर का चैन खत्म होना शुरू हो जाता है। मुसलमानों अरे उस माँ बूढ़ी माँ से जाकर के मालूम करो, अरे जिस बूढ़ी माँ ने अपने दिल के टुकड़े को तेरे हवाले करके अरे वो आंसू को बहाते हुए अपने मकान के कोने के अंदर छुप कर रोती है। अरे जिसका खाना उठ जाता, पीना उठ जाता है, अगर उसकी बेटी जो है परेशान रहती है तो उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। और उस बूढ़े बाप से जाकर के मालूम करो, जिस बूढ़े बाप ने अपने जिगर के टुकड़े को तुम्हारे हवाले करके और वो अपने मकान के जाकर के मुंह छुपा छुपा करके रोता है, उस बूढ़े बाप से जाकर के मालूम करो मेरे मोहतरम के दर्द क्या होता है। मेरे मोहतरम अगर बहू को, अगर लड़के की बीवी को बुखार चढ़ जाता है, वो बेचारी लेट जाती है, कोई पड़ोसन आती है, कहाँ तुम्हारी लड़के की बीवी कहाँ है, तुम्हारे जो है लड़के की बीवी कहाँ है, तुम्हारी बहू कहाँ है, कहा जाता है काम चोर है, काम करना नहीं चाहती। मेरे मोहतरम अरे जब उसकी बेटी के सर में दर्द होता है तो मालूम होता है कि तकलीफ क्या होती है। मेरे मोहतरम आज उन दुल्हनों को तंग किया जाता है, अरे पीछे तो बाप की शर्म, माँ की शर्म, आगे सास ससुर ने उसको चक्कर दिया है, क्या उसकी तमन्नाएं कब्रिस्तान में जाके पूरी होंगी? अरे क्या उसकी कब्रों के अंदर उसकी तमन्नाएं पूरी होंगी? मुसलमानों में तो कहता हूँ कि उनको पूरा मौका दिया जाए जिंदगी गुजारने का। खैर मेरे मोहतरम अपने बात को मुख्तसर करते हुए अब जो है क्या समझते हैं कि जहेज के मालिक तुम हो। अरे जहेज सामान्य जहेज के मालिक लड़की है, लड़की के सिवा न उसका शोहर मालिक हो सकता, न शोहर का बाप मालिक हो सकता है, इसके ऊपर फतवा है। मेरे मोहतरम सामान्य जहेज की मालिक लड़की है, खा उसके इस्तेमाल के लायक हो या ना हो, खा उसके इस्तेमाल के लायक हो या ना हो, मेरे मोहतरम सामान्य जहेज की मालिक लड़की है। मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, कार है, सामान्य जहेज की मालिक लड़की है। अगर जिसके इस्तेमाल के लायक हो या ना हो, बगैर इजाजत के उसको इस्तेमाल करना जायज नहीं है। और अगर इजाजत लेकर के इस्तेमाल भी कर लिया जाए तो मालिक नहीं बन जाएगा, मालिक लड़की रहेगी। मुसलमानों अरे दूसरे के माल पर फख्र कैसा, अगर कैसी, अरे खुद से कमाओ, इंतजाम करो, दूसरे के माल पर ऐश करना छोड़ दो। मुसलमानों अरे किसी के घर के उजाड़ करके घर नहीं बसा करते, अगर जो है घर उजड़े हुए को बसा कर घर बसते हैं। मुसलमानों अरे नाजायज कोई चीज दबाव डालकर हासिल करना हराम है और ऐसी
चीजों का अंजाम जहन्नम की देखती हुई आग है, जहन्नम की देखती हुई आग है। खैर मेरे मोहतरम, अपनी बात को मुख्तसर करते हुए आज हमारा मुआशरा तबाही की तरफ जा रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है, तो इसलिए हमें अपने मुआशरे को बचाना है। अगर हमें अपना मुआशरा बचाना है तो हमें इन मदरसों से जुड़ना पड़ेगा, अल्लाह के कुरान से जुड़ना पड़ेगा, उलमाए किराम से जुड़ना पड़ेगा। मेरे मोहतरम, यहाँ बच्चों को समझाया जाता है, यहाँ उनको अच्छे अखलाक सिखाए जाते हैं, यहाँ अल्लाह का कुरान की तालीम दी जाती है, यहाँ जिंदगी गुजारने का तरीका बदलाया जाता है, यहाँ पड़ोसी के हुकूक बदलाए जाते हैं, यहाँ सास ससुर के हुकूक बदलाए जाते हैं, यहाँ बीवी के हुकूक बदलाए जाते हैं, यहाँ माँ बाप के हुकूक बदलाए जाते हैं और बदलाया जाता है प्यारे बच्चों, जहाँ तुम रहते हो और तुम्हारे पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनका तुम्हारे ऊपर हक है। और प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना, जो तुम्हारे समाज के बड़े बूढ़े लोग, अरे जिनके दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके हैं, जिनके सर के बाल सफेद हो चुके हैं, अरे जिनकी कमर झुक गई है, जो लाठी के मोहताज है, डंडे के मोहताज है, उनकी ताज़ीम करना, उनका इकराम करना, उनका एहतराम करना, उनके साथ मोहब्बत के बोल लेना और उनकी सेवा करना, उनका ख्याल रखना। मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम का फरमान है कि बूढ़ों का एहतराम करना नहीं है, बल्कि बूढ़ों के पैदा करने वाले रब्बे ज़ुल जलाल का एहतराम करना है। इन मदरसों के अंदर ये सिखाया जाता है प्यारे बच्चों, जहाँ तुम रहते हो और तुम्हारे मकान के बाहर जो सड़क गुजरती है उसको गंदा करते हो, उसको कूड़ा करकट डाल देते हो, ईंट पत्थर डाल देते हो, अपने शहर और अपने आंगन का पानी बहा देते हो। अरे ठीक है, गांव का जिम्मेदार और कस्बे का जिम्मेदार तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन प्यारे बच्चों एक बात याद रखो, जिस शरीयत के मानने वाले तुम हो उस शरीयत के एतबार से तुमने जुर्म किया है। इन मदरसों के अंदर ये सिखाया जाता है प्यारे बच्चों, अगर जिस महल के अंदर, जिस बिल्डिंग के अंदर तुम रहते हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो और दस्तरखान लगा हुआ है, तरह तरह की डिशें लगी हुई है, खाना खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात याद रखना, तुम्हारे पड़ोस में गरीब झोंपड़ा है और गरीब झोंपड़े के अंदर एक गरीब औरत रहती है, एक बेवा औरत रहती है और गरीब औरत का गरीब बच्चा अरे भूख की वजह से रोता है, बिलबिलाता है, तड़पता है। ये कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारी जान पहचान का हो, ये भी कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारी बिरादरी का हो, ये भी कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे खानदान से ताल्लुक रखता हो, ये भी कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे दीन और धर्म से ताल्लुक रखता हो सकता है वो कोई कुम्हार हो सकता है वो कोई पंडित हो, कोई शर्मा हो। अगर तुम अपने महल के अंदर पेट भर कर खाते हो और वो गरीब बच्चा भूख की वजह से रोता है, बिलखता है, सिसकता है, तो तुम सब कुछ हो सकते हो लेकिन मुसलमान नहीं हो सकते। ला युमिन, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता है। क्या कोई मुसलमान ऐसा हो सकता है जो दूसरों की फिक्र ना करे? अरे कुल जो है अल्लाह का कुरान तो कह रहा है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्या तुमको फजीलत दी गई है? क्या इस वजह से कि तुम नमाज़ें बहुत पढ़ते हो, अरे रोजा बहुत रखते हो, ज़कात बहुत देते हो, अरे तहज्जुद बहुत पढ़ते हो? अरे तो तुम्हें करना ही करना है, ये तो तुम्हारे फराइज में से है। अरे बेहतरीन उम्मत इसलिए हो उखरिजत लिन्नास, तुमको लोगों की नफा रसानी के लिए बर्पा किया गया है। हमें सबके काम आना है, हमें सबके नाफे बनना है, सबके लिए नाफे बनना है। ये इंसानियत की तालीम इन मदरसों के अंदर दी जाती है, ये इंसानियत यहाँ सिखाई जाती है और ये हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबके फराइज में से है। हम अपने बच्चों को अल्लाह का कुरान सिखाएं, अरे दीन सिखाएं, इल्म सिखाएं, जन्नत और जहन्नम के बारे में बताएं, आखिरत के बारे में बताएं। अगर खुदा न खास्ता तुमने अपने बच्चों को अल्लाह के कुरान से दूर रखा, अरे मदरसों से दूर रखा और उलमा से दूर रखा और अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया, जिसकी वजह से वो कल को खड़ा होकर के पेशाब करता है, वो भारत की वंदना करता है, वो सूर्य नमस्कार करता है, वो कुफ्र करता है, वो शिर्क करता है, जिसकी वजह से क़यामत के रोज उसे जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। तो मुसलमानों याद रखो, वो तन्हा नहीं जाएगा, वो अपने प्यारे माँ बाप को घसीट करके ले जाएगा। अरे क्यों? जितना बड़ा मुजरिम जवान है, इससे बड़े पापिस्ट के माँ बाप हैं, क्यों नहीं बताया कि बेटा हम मुसलमान हैं, तौहीद हमारा अकीदा है, हम अल्लाह के अलावा दुनिया की किसी शक्ति के आगे, अरे चांद के आगे, सूरज के आगे, पहाड़ के आगे, दरिया के आगे, समंदर के आगे, दरख्त के आगे हम अपना सच नहीं झुकाते? क्यों नहीं बताया? जितना बड़ा मुजरिम जवान है, इससे बड़े पापिस्ट के माँ बाप। मेरे मोहतरम, आप ये ना समझना कि मुखालिफत कब रहा। हमारे उलमा किराम
इंग्लिश पढ़ाने से मना नहीं करते। जो है जहाँ हमें एक कारी की ज़रूरत है, हमें डॉक्टर साहब की भी ज़रूरत है, हमें जहाँ मुफ्ती साहब की ज़रूरत है, हमें एक जज की ज़रूरत है। हमारे उलमा किराम ये बतलाना चाहते हैं कि बड़ी से बड़ी डिग्री दिलाइए और बड़े से बड़े ओहदे पर पहुँचाइए, लेकिन उसके दिलो दिमाग में सबसे पहले और आखिरी नंबर पर ये बताइए कि बेटा तू मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है। ये सबसे बड़ी कामयाबी है। तो इंशाअल्लाह सब तैयार है, इंशाअल्लाह हाथ उठा के इंशाअल्लाह सब तैयार है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे मोहतरम, ये आपका मदरसा है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने मदरसे का पूरा ख्याल रखें। यहाँ मेहमान रसूल रहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी तालिब इल्म के लिए कोई रास्ता तय कर दे, खाने का इंतजाम कर दे, पीने का इंतजाम कर दे, रोशनी का इंतजाम कर दे, चारदीवारी का इंतजाम कर दे, पढ़ाने वाले का इंतजाम कर दे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देंगे, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देंगे। तो इसलिए सब हजार अल्लाह के मुबारक कलाम की मोहब्बत में तैयार रहे कि इंशाअल्लाह अगर जान की कुर्बानी देनी पड़े तो इंशाअल्लाह देंगे, इंशाअल्लाह दोगे, इंशाअल्लाह। डरो नहीं, घबराओ नहीं, अल्लाह हिफाज फरमाए, रहम का मामला फरमाए। ये सुबह को ऐलान नहीं हो रहा है कि अभी आप इसमें बैठे, आप तो दुआ करते कि अल्लाह हमारे मुल्क के अंदर, हमारे इलाके के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह अमन व अमान कायम फरमाए। मेरे मोहतरम, आपने नियत की, इरादा क्या, सवाब मिल गया है। तो आप इंशाअल्लाह तैयार हैं। अगर माल की कुर्बानी देनी पड़े अल्लाह के मुबारक कलाम की मोहब्बत में इंशाअल्लाह दोगे, इंशाअल्लाह। कौन हज़रात तैयार है? माशाअल्लाह। इस्लामिक वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल इशाअतुल इस्लाम केराना सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।